آج میں یہ انشاءاللہ کہتا ہم ہوں، آج کوشش مجھے کر رہے عمران خان کی یاد آتی ہے جب وہ سعودیہ میں جا کے کہتا تھا میرے مزدور بھائیوں کا خیال کرنا. آج وہ ہوتا تو ضرور سٹینڈ لیتا. عمران خان زندہ آباد، عمران خان زندہ آباد، عمران خان زندہ آباد. جو نیوز پہ بیٹھی ہوئی ہیں بیان آ رہے ہیں کہ ہم سٹینڈ لے رہے ہیں، سٹینڈ لے کیا سٹینڈ لے رہے ہیں؟ یہاں پہ آج رات ہماری زندگی موت کا سوال ہے. آج رات کو وہ لوکیشن بار بار لے کے جا رہا ہے. اگر آج رات ہمارے ساتھ کچھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہماری یہ ویڈیو مریم نواز کو لازمی دکھا دینا کہ بڑا سٹینڈ لیا. یہ ہزارہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے. اس نے اپنی ڈگری لینی تھی اور ڈگری لینے کے لیے آیا تو اس نے اپنے گاؤن کے اندر سے عمران خان کی تصویر نکالی اور ڈگری کے نیچے رکھ دی. اور دیکھیے کہ کس انداز سے اس کا ڈگری لینے کا سٹائل ہے، اور جس تم تراک سے وہ انٹر ہوا اسی تم تراک سے واپس گیا. اور ان بچوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتا تو وہ ان حالات اور ان مشکلات کے اندر نہ ہوتے. السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہر سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے. کرغزستان یعنی بشکیک کے اندر طلباء نے وہ بات کر ڈالی ہے جو شاید ہر پاکستانی کے دل کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ سعودیہ میں موجود پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھانے والا شخص جو اس وقت اڈیالہ کا مقیم ہے یا اڈیالہ کا مکین ہے، وہ اگر وزیر اعظم ہوتا تو ان کے لیے آواز اٹھاتا. وہ اس وجہ سے دل برداشتہ بھی ہیں، دل گرفتہ بھی ہیں. یہ بات وہاں پر موجود میڈیکل اسٹوڈنٹس نے کی ہے. شروع میں چھوٹا سا آپ نے گلمپس ملاحظہ کر لیا. اس کے علاوہ آپ نے ایک اور ویڈیو دیکھ لی جس میں ہزارہ یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹ جب ڈگری لیتا ہے تو ساتھ عمران خان کی تصویر لے کر کھڑا ہوا ہے. تو یہ وہ امیجز ہیں، یہ وہ تصاویر ہیں جو ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ پبلک اپنے دل میں اپنے چاہنے والے لیڈر کے لیے کیا رکھتی ہے، جبکہ جو امیجز سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر نظر آتے ہیں وہ اس کی عکاسی کرتے ہیں، اور نیشنل میڈیا کے اوپر جو نظر آتے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. تو کیا صورتحال رہی بشکیک کے اندر؟ اب حالات کچھ بہتر ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ ڈیپٹی وزیر اعظم اور امیر مقام نے اپنا دورہ کینسل کیا ہے. انہوں نے دورہ کینسل کیوں کیا، کیا ریزنز بتائی ہیں، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ شیئر کروں گا. گندم سستے داموں بھی خریدنے کو تیار نہیں تھی پنجاب حکومت، تو کے پی کے حکومت نے کہا کہ پنجاب والے ادھر آئیں اور ہمیں گندم بیچیں. لیکن پنجاب حکومت نے یہ بھی نہیں کرنے دیا. یعنی نہ تو گندم خریدنی ہے پنجاب کے کسانوں سے، نہ اس کو بیچنے دینا ہے دوسرے صوبے کو، اور پھر پکٹس لگا دیے ہیں اور راستے میں ناکے لگا دیے ہیں. یہ کیا سچویشن ہے، یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے، اس سے میں آپ کو آگاہ کروں گا. طارق بشیر چیمہ زرتاج گل صاحبہ کے ساتھ جو مس بیہیو کر چکے ہیں اس کے بعد ڈٹ بھی کہیں، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی شیئر کروں گا. اور چند وائرل بیانات. اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے. ایک اور گزارش، اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے، یعنی بیل آئیکن اپنے انگوٹھے یا انگلی یا ساتھ رکھ کے ڈنڈے سے دبا دیجیے گا تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں. کامنٹس آپ نے کرتے رہنے ہیں، کامنٹس، میکسیمم لائکس، میکسیمم شیئرز. اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہی ہوا ہے تو آل ویڈیوز کا آپشن ضرور سلیکٹ کیجئے تاکہ تمام نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بشکیک کی. اب معمولات زندگی وہاں پر نارمل ہونے لگے ہیں، بہتر ہونے لگے ہیں. تقریباً کوئی 150 کے قریب پاکستانی کل آئے تھے، 540 آج آ رہے ہیں. حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کے خرچے پر آئے ہیں، بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے خرچے کے اوپر آئے ہیں. شروع میں آپ نے ویڈیو کلپ ملاحظہ کر لیا، بچے کہہ رہے ہیں اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے تو اس مشکل کے 2-3-4 دن ان کے اوپر گزرے ہیں وہ نہ گزر رہے ہوتے اور ان کو واپس وقت پر لایا جا چکا ہوتا. جبکہ ملک کا وزیر خارجہ اور ڈیپٹی وزیر اعظم اور اس کے ساتھ امیر مقام صاحب، ان کا دورہ شیڈیول تھا بشکیک کا، لیکن اچانک وہ دورہ کینسل کر دیا گیا. اس دورے کے کینسل ہونے کی ریزنز کیا بنی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کرغز حکام کی درخواست پر نہیں گئے. یہ پریس کانفرنس کی ہے عطا طاہر نے، اسحاق ڈار نے اور امیر مقام نے. انہوں نے کہا کہ کرغزستان حکام کی درخواست پر نہیں گئے. آج مزید 540 پاکستانی طلبہ وطن واپس پہنچیں گے. اسحاق ڈار، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اس حوالے سے کہا کہ ہم نے وزیر اعظم کی ہدایت پر آج بشکیک جانا تھا لیکن کرغزستان کے حکام کی درخواست پر نہیں گئے. آج مزید 540 پاکستانی
तलबा किर्गिस्तान से वतन वापस पहुंचेंगे। अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने लाहौर में की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके साथ अतातुर्क और अमीर मुकाम भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बिश्केक में पेश आने वाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद इस मामले को देख रहे हैं। 130 पाकिस्तानी तलबा गुज़िश्ता रोज़ वतन वापस आ चुके हैं, जबकि आज मजीद 540 पाकिस्तानी तलबा एक और तैयारे के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि एयरफोर्स की एक फ़्लाइट तलबा को वापस लेने के लिए बिश्केक जाएगी। अब ये शेड्यूल कब होगी, कौन से दिन जाएगी और क्या उसका फ्लाइट टाइम होगा, वापसी का टाइम क्या होगा, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा कि 50 के करीब तलबा ने पाकिस्तानी सफारतखाने में अपनी एंट्री कराई है और जिससे जैसे ही फ्लाइट के नंबर्स पूरे होंगे तो ये तैयारा भी बिश्केक से पाकिस्तानी को लेकर वापस आ जाएगा। इसहाक डार ने बताया कि किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर से ताज़ा सूरत हाल की मुकम्मल तफसीलात ली हैं। ये वही सफ़ीर हैं जिनकी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने कॉल करके माँ बहन एक कर दी थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बहुत सुकून में है ये सिचुएशन जो है ना, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन सफ़ीर से उन्होंने मुकम्मल तफसीलात हासिल कर ली हैं। 50 के करीब तलबा ने पाकिस्तानी सफारतखाने में अपनी एंट्री कराई है और वाक़े में 16 तलबा ज़ख्मी हुए, जिनमें कुछ पाकिस्तानी भी शामिल हैं, लेकिन किर्गिज़ हुक्काम ने इन वाक़यात में किसी पाकिस्तानी की हलाकत की तरदीद की है। तो अब ये जो स्टूडेंट्स हैं वो ये आकर बताएंगे कि असल मुद्दा है क्या वाक़तन किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट की हलाकत हुई है नहीं हुई है, कुछ रेप के जो खुदा न ख्वास्ता खबरें आ रही थी वो खबरें हैं या महज अफवाहें हैं, जो हरासा करने की जो खबरें आ रही थी वो दुरुस्त हैं या गलत हैं। ये तमाम डिटेल्स आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे तो वो बताएंगे। गंदम इतनी सस्ती हो गई कि कोई खरीदने को तैयार नहीं था। हुकूमत ये वजह बताकर खरीद नहीं रही थी पंजाब की कि हमारे पास इसको स्टोर करने की जगह नहीं है और ये खराब हो जाएगी, तो इससे बेहतर है कि हम ना लें। जब नहीं ले रहे तो उनके पास एक ऑप्शन था जो अली अमीन गंडापुर ने पैदा किया, वो ये कि आप वो गंदम हमें अच्छे दामों के ऊपर केपीके को बेच सकते हैं। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस हवाले से एक और इनिशिएटिव लिया है, अपनी नज़र में बड़ा साइंटिफिक रिसर्च करके इनिशिएटिव लिया होगा। वो क्या है? पंजाब के किसानों के लिए मजीद मुश्किलात जनाब। पंजाब हुकूमत ने सूबे से गंदम ले जाने से रोक दिया। गंदम स्मगलिंग की रोकथाम के लिए चेक पोस्टें कायम करने की हिदायत और यह नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, मतलब इनकी अक्लो दानिश और फहम को सलाम पेश करने को दिल करता है। यह सलाम पेश करने को दिल करता है कि आप इस कदर रुथलेस हो चुके हैं कि वो किसान मरता है मर जाए, लेकिन वो दूसरे सूबे को नहीं देंगे क्योंकि इस सूबे से उस सूबे को चीज जाएगी तो शायद वहां पर रोटी और सस्ती हो सकती है, और दूसरा उस सूबे से इस सूबे के किसानों को फायदा होगा तो वो वोट बैंक, उनका दिल जीतने की सूरत में वोट बैंक उनका हो सकता है। तमाम पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, इसमें कहीं ब्रेन काम नहीं कर रहा, और अगर कम से कम ब्रेन काम कर रहा होता तो नौबत यहां तक ना पहुंची होती। ये इंतहाई अफसोसनाक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तारिक बशीर चीमा साहब गुज़िश्ता रोज एक टीवी शो में बैठे थे और उन्होंने कहा कि जब ज़रताज गुल औरत कार्ड इस्तेमाल करती हैं तो उसे अंदाज़ा होना चाहिए कि मुझे जवाब भी मिल सकता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ आपने मिसबिहेव किया, फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर गालम गलोच की, शदीद तरीन गालियां दी, और उसके बाद जब आपकी रुकनियत मुअत्तल हुई है तो आप अपनी बात के ऊपर न सिर्फ डट गए हैं बल्कि आपको लगता है कि आपने जो किया वो दुरुस्त किया था और वो औरत कार्ड इस्तेमाल करिए भाई। तो आपके घर की अपनी औरतें, अपनी बहनें, बेटियां, उनके मुतालिक आपकी क्या राय होगी। और वैसे भी जो भावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ वो हम सबको पता है, उसके बावजूद आप उसके ऊपर माजत करने के बजाय उसके ऊपर भी डट गए थे, तो ये वाला मामला तो शायद उससे ज्यादा संगीन है और इसके ऊपर तो आपको अपने आप को बचाना भी है। तो ये हालात जी, अब आप अंदाजा कर लीजिए। आ जाए जी, कैसे कर लेते हो यार, यानी वायरल बयानात हम शामिल करते हैं इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की। जनाब जावेद हाशमी साहब का बयान सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि NA 148 से जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं और जो लोगों की राय सामने आ रही है उसके मुताबिक इस हल्के में पांसा पलट चुका है और इसकी वजह सिर्फ एक शख्स है और वो है इमरान खान। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इमरान खान साहब जेल में कैद हैं। इमरान खान साहब का सिर्फ नाम का तूती बोलता है, यानी आप अंदाजा लगा लें कि उनकी तस्वीर अगर लीक होती है तो वो ट्रेंड्स बना देती है, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड्स, पूरी दुनिया में लोग उनकी तस्वीर को लेकर मिठाइयां तकसीम कर रहे होते हैं। वो शख्स अडयाला जेल के अंदर बैठा है और उसके मुताबिक जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि NA 148 से जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं वहां पर पांसा पलट चुका है और उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। यहां तो सिर्फ पूरा NA जी, पूरा NA, पूरे PA, पूरा पाकिस्तान। फैसल वाडा साहब जी, अब इनकी सुन लीजिए, ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं इंसान है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, अदालत जाकर वजाहत करूंगा।
4 दिन पहले जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 मिनट के लिए भी नहीं सोचा था कि उनके मुंह से क्या निकल रहा है, और ये इसी तरह से करते हैं। इनकी जो हवाई बम्बार्डमेंट है ना, वो हम सब सुन रहे होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो गई है। समझ ले, कहना ये चाह रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब पार्शल गलती होता है, माना ना जा रहा हो लेकिन ये कहा जा रहा हो कि यार थोड़ी सी हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब अंदाजा कर, उधर जस्टिस अतहर मिनल्ला है, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, और उनसे ये कह रहे हैं कि मुझे प्रॉक्सी साबित करके दिखाओ, और इधर ये कह रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो बाकी आप समझ लेंगे इसमें बंदा कहना क्या चाह रहा है जी। आगे चलते हैं जी। नजम सेठी साहब, कैसे कर लेते हो यार वाटर साहब। नजम सेठी साहब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट कहती है हमें जुडिशरी से बचाओ, पीपल्स पार्टी और नून लीग कहती है आपने हमें हॉट सीट पे बिठा दिया, और ये तो बहुत हॉट सीट है, हमें अवाम जूतियां मारने को तैयार है, पावर आपने ले ली, जिम्मेदारी हम पर ठोक दी। नजम सेठी खुलकर बोल रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त जिस पोजीशन में है वो वाकईतन बहुत ज्यादा तत्ते तवे के ऊपर बैठे हुए हैं। उनके पता है कि पार हमारे पास कुछ है नहीं, और जूतियां इनको पड़ने लगी हैं पब्लिक की। तो इससे नतीजा क्या निकल सकता है वो आप खुद अखज़ कर लीजिएगा कि इनके हालात क्या बनने जा रहे हैं मुस्तकबिल में। एतजाज अहसन साहब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जिस तरह एजेंसियां जजेस को धमकियां दे रही हैं और जजेस के कमरों में कैमरे लगाए गए हैं, ये तो चाहते हैं जमहूरियत को ही खत्म कर दें। तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस कह रहे हैं कि हमें धमकियां मिल रही हैं। एतजाज अहसन सीनियर कानूनदान है, सीनियर लॉयर है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, उनका अपना एक कद है सियासत के अंदर। वो फरमा रहे हैं कि अब तो सारे जजेस ये कह रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। बाबर अवान साहब, डॉक्टर बाबर अवान, वो कहते हैं किर्गिस्तान सिनेरियो में तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार बनता है। किर्गिस्तान के केस के अंदर तलाशे गुमशुदा का केस बनता है। कहां गए दोनों डेप्टी शहबाज और डेप्टी डार। जब भी अपने मुल्क के लिए स्टैंड लेने का वक्त है, कौम बजा तौर पर कैदी नंबर 804 को याद करती है, और कौम वाकईतन बजा तौर पर कैदी नंबर 804 को याद करती है। आपने शुरू में 2 अदद वीडियोस देख ली हैं। एक वीडियो बिश्कीक यानी किर्गिस्तान की है, जहां से तलबा 3-4 तलबा का एक ग्रुप है, जत्था है, 30 सेकंड की वीडियो है। इस वीडियो में ये बता रहा है कि नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ये कहते हैं कि यहाँ पुरअमन चल रहा है सब, लेकिन उनको लगता है कि कोई भी चीज़ पुरअमन नहीं है। उनको लगता है कि अगर आज उनके दिलों का वजीर आजम जो वाकईतन जीता हुआ वजीर आजम है, वो अगर वजीर आजम होता, यानी इमरान खान जो कैदी नंबर 804 वजीर आजम होता, तो वो सऊदीया में अगर अपने दोस्त मुसलमान पाकिस्तानियों की मदद के लिए खड़ा हो सकता था, तो वो आज बिश्कीक के लोगों के लिए भी स्पेशल फ्लाइट्स कर रहा होता। तो ये बात तो मानने की है, यही बात बाबर अवान साहब ने की है। और दूसरा, आपने मुलाजा कर ली थी वीडियो कि किस तरह स्टूडेंट्स जो है वो रिसीव कर रहे हैं अपनी असनाद और अपनी डिग्रीज, और साथ में इमरान खान की तस्वीर रखी हुई है। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।